Hello my dear students, good morning to all. Welcome back to our English online class. This is your English second book and the name of your English second book is New Tree Top. So how are you all students? So I hope all of you are well and safe at home and studying properly. Very good students. So in English second, what we are studying nowadays? Yes, very good. We are studying lesson 5th. Okay. And the name of our lesson 5th is The Little Caterpillar. So all of you requested to open the book and take out lesson 5th. Okay student, this is lesson 5th, The Little Caterpillar. Okay. And I hope you have completed the work and homework. Yes, very good. And student, this is the 4th part of this lesson. Okay, ये इस lesson का बच्चों 4th part है. Three part हम कर चुके हैं. First part में I explained you the story. First part में stories explain की है मैम ने. Second part में हमने ये exercises and question answers किए हैं. Okay, and in the third part we completed these two exercises. This one and this one, और ये हमने notebook में भी की है. Okay, so if your work is incomplete, so you can complete your work watching the videos. Okay, good. And in this lesson student, we studied that how a caterpillar turns into a beautiful butterfly. Okay, so हमने इस lesson में जो caterpillar कैसे butterfly में change होता है, transform होता है या turn होता है. Okay, some words are made of two words. For example, butterfly is equal to butter plus fly. Okay, so students, इसमें क्या हुआ है? What is the meaning of butterfly? Yes, very good, titli. But here in the English there are some words that are made of two words. Means जो दो शब्दों से बने होते हैं. Like if we break this word, then we find that there are two separate words. Butter plus fly, and these two words are having their own meaning. मतलब इसका कुछ इनके अपने भी अलग अर्थ हैं. जैसे बटरफ्लाई का मतलब हो गया तितली, बट अगर हमने इसको ब्रेक किया मीन्स हमने इसको अलग अलग लिखा तो बटर मीन्स क्या होता है बच्चों? मक्खन. ओके, एंड फ्लाई मीन्स उड़ना. तो इसका भी अपना सेपरेट मीनिंग है और इस वर्ड का भी अपना सेपरेट मीनिंग होता है. और हमने इन दोनों को जब मिला दिया मीन्स बटरफ्लाई हो गया, तब क्या बन जाता है? तितली. ओके, सो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं. सो हियर सम वर्ड्स आर गिवन, सो ब्रेक दीज वर्ड्स एंड राइट इन द ब्लैंक्स. सो अब हमें क्या करना है? वी हैव टू ब्रेक दीज वर्ड्स. ओके, सो फर्स्ट वन इज गिवन शूलेस. शूलेस, शूलेस मीन्स क्या होता है बच्चों? जो आपके शूज में जो शूलेस होता है, मतलब जिसको आप बांधते हैं तो अपने शूज को टाइट करते हैं, उसको बोलते हैं शूलेस. Okay, so now break this word and write here two separate words. And here what we get? Shoe means होता है जूता, and less means in हिंदी less फीता. ओके, इसको बोलते हैं बच्चों फीता. इसका मतलब अगर हमने इन दोनों को मिक्स किया, मतलब ज्वाइन करते हैं, तो इसका मतलब होता है शूलेस मीन्स जो जूते में आप जो फीता होता है उसको बोलते हैं. ओके, सेकेंड वन सनफ्लावर. So write here, break this word and write here, write sun and write here flower. Okay, so if we break this word, so what we get? Two separate, मतलब two words. First one sun, second one flower. And the meaning of sun is? Yes, you know, सूरज. And the meaning of this word? Flower means फूल. ओके, इसका मतलब हो गया बच्चों सूरज और यहाँ है फूल. और अगर सनफ्लावर वो एक जगह हो गया तो इसका हो जाता है, इसको बोलते हैं सूरजमुखी. सूरजमुखी का फूल आपने देखा है? बस सूरजमुखी के फूल को बोलते हैं सनफ्लावर. ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड वन डे टाइम. सो राइट हियर डे एंड राइट हियर टाइम. ओके, ब्रेक दिस वर्ड. सो दिन का डे टाइम मीन्स दिन का समय, एंड हियर डे मीन्स दिन और टाइम मीन्स समय. ओके, और बच्चों आप जैसे बोलते हैं ना, इसको हम बोलते हैं शूलेस, तो आप ऐसे ही इसको ब्रेक करेंगे. शू अलग, लेस अलग. हियर सनफ्लावर, सो राइट सन एंड देन फ्लावर. थर्ड वन डे टाइम. ओके, आपको ये बोलने भी हैं और आप इसको प्रैक्टिस करना
2 times, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो। देन फोर्थ वन ब्लैक बोर्ड। ओके, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे कि ब्लैक में से शायद BLAC इधर लिख दें और बाकी इधर लिख दें, ऐसे नहीं करना है। इसको अगर आप बोलेंगे तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। सो ब्लैक बोर्ड, सो ब्लैक हियर एंड बोर्ड हियर। ओके, फुटबॉल, सो फुट हियर एंड बॉल हियर। ओके स्टूडेंट्स, very good. So write here blackboard, black, then board. Very good. Blackboard means you have a blackboard in your classroom. आपके क्लासरूम में ब्लैकबोर्ड है। वेरी गुड। तो अगर हम इसको बच्चों ब्रेक करते हैं तो यहाँ हमें 2 वर्ड्स मिलते हैं। फर्स्ट वन ब्लैक, सेकंड वन बोर्ड। तो फर्स्ट वन ब्लैक का मीन्स क्या हो गया? काला। एंड बोर्ड मीन्स जो बोर्ड होता है। ओके, बोर्ड को बोर्ड ही बोलते हैं मोस्टली। सो फिफ्थ वन football, so write here football, so break this word and we get football. Okay, so write here foot and here ball. Okay students, write foot here and ball here. And what is the meaning of foot? Foot means पैर, ball means गेंद। okay, so यहाँ हमने इसको means break किया तो हमें यहाँ मिले पैर, एक वर्ड की हिंदी, और सेकंड वर्ड की हिंदी है बॉल। और जब हम इसको ज्वाइन करके लिखते हैं मीन्स फुटबॉल लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है? फुटबॉल मीन्स ये वाली बॉल। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज। दिस इज वेरी इजी। ओके, सू लैश, इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए इसको ब्रेक करना। सनफ्लावर, डे टाइम, ब्लैक बोर्ड, फुटबॉल। ओके, नेक्स्ट वन, लेट्स लिसन to a passage, then number these sentences in the correct order. Okay, so we have to first we should means read these sentences, then we have to write the number. Okay, these sentences in the correct order. So first sentence is, finally a butterfly comes out of the cocoon. Means this is the process how a caterpillar turns into a beautiful butterfly. Okay, second one, a butterfly starts its life as an egg. Okay, third one, when the caterpillar grows enough it forms a cocoon. Fourth one, when the egg breaks a caterpillar comes out. So what is the which one is the first बच्चों, which one is the first process? Means इस process में पहले नंबर पर कौन सा आएगा? कौन सी होगी? गुड, वेरी गुड। अ बटरफ्लाई स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज एन एग। पहले क्या होता है, एक बटरफ्लाई जो अपनी लाइफ स्टार्ट करती है वो एज एन एग। मीन्स एक जो बटरफ्लाई है तो वो एक एग से शुरू होती है। मैम ने आपको समझाया था ना फर्स्ट पार्ट में कि एक बटरफ्लाई पहले क्या देती है बच्चों? एक एग, मतलब अपने जो एग्स है वो एक लीफ पर देती है। लीफ माने पत्ते पर देती है, किसी पेड़ के पत्ते पर। फिर उस एग्स में क्या होता है? वेरी गुड। और उस एग में से जब एग ब्रेक हो जाते हैं उसमें से कैटरपिलर कम्स आउट, मीन्स कैटरपिलर निकलता है। फिर वो कैटरपिलर जब खूब सोता है, सोती भी है और खूब पत्तियां भी खाती है, जब उसकी ग्रो मीन्स अच्छी हो जाती है तब वो इट मेक्स अ कोकून। फिर क्या होता है, वो एक कोकून बनाती है। ओके, और फिर कोकून बनाने के बाद उस कोकून में भी वो कुछ दिनों तक रेस्ट करती है। तब क्या होता है, एक बटरफ्लाई बाहर निकलती है। ओके, तो ये प्रोसेस होता है। मतलब डायरेक्ट एग में से ही बटरफ्लाई नहीं निकलती है, पहले एग, फिर कैटरपिलर, देन कैटरपिलर कोकून बनाती है, देन उस कोकून में से बटरफ्लाई निकलती है। ओके, सो विच वन इज द फर्स्ट? ये अ बटरफ्लाई स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज एन एग। सो राइट हियर वन। सेकेंड वन, व्हेन द एग ब्रेक्स। ओके, पहले एग हो गए, फिर एग ब्रेक्स किए, जब मतलब ब्रेक्स मीन्स टूटे, अ कैटरपिलर कम्स आउट। सो फिर एग टूटा, फिर कैटरपिलर कम्स आउट, कैटरपिलर निकला उसमें से बाहर। देन थर्ड वन, व्हेन द कैटरपिलर ग्रोज इनफ इट फॉर्म्स अ कोकून। ये है बच्चों कोकून। ओके, ये जो आप बना रखा ना आउटर पार्ट जो देख रहे हैं आप, ये। सो राइट ये थर्ड मीन्स जब कैटरपिलर अच्छे से ग्रो कर लिया तब इसने कोकून बनाया। देन फोर्थ वन, फाइनली अ बटरफ्लाई कम्स आउट ऑफ द कोकून। फिर एक सुंदर सी प्यारी सी बटरफ्लाई कोकून में से बाहर निकलती है। सो राइट फोर्थ। सो डन स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली। हमने आपको अच्छे से बता दिया ना? यस, नाउ टर्न ऑन द पेज। ओके, लेट्स स्पीक, रीड व्हाट दे आर सेइंग टू ईच अदर। यस, so first in first picture
caterpillar, can you fly? Means this is a butterfly, okay, and she is asking to a caterpillar, can you fly? क्या आप उड़ सकती हो? So caterpillar is saying, means it is answering, no, I can't. No, I can't. Okay, because it has no wings, so it can't fly. So it is answering, no, I can't. Okay. Second one, Bharat, can you skate? This boy is asking him, can you skate? So he is answering, yes, I can. Third one, this means she is asking to him, Arun, can you ride a bike? So he is answering, yes, I can. So students, we have read means these sentences, and through these sentences we come to know that if we are able to do something, so we should answer I can. Okay, and if we are not able to do something, so we should answer I can't. अगर आपसे बच्चों कोई पूछता है कि क्या आप हिंदी लिख सकते हो, सो कैन यू राइट हिंदी, सो अगर आप लिख सकते हो तो आप क्या बोलोगे? आई कैन. ओके, अगर आप कर सकते हो उस वर्क को तो आपका आंसर होना चाहिए कैन, मीन्स आई कैन. ओके, आई कैन. अगर आप उस वर्क को नहीं कर सकते हो जो आपसे पूछा गया है, सो आपको आंसर क्या देना है? आई कांट. ओके बच्चों, समझ में आया? जो हम कर सकते हैं उसको हम आंसर देंगे आई कैन, और जो हम वर्क नहीं कर सकते हैं उसको हम देंगे आई कांट. लाइक कोई आपसे पूछे कि कैन यू लिफ्ट दिस वेट, मीन्स आप क्या इस वेट को या जो भी बॉक्स है, ये कैन यू लिफ्ट द बॉक्स, आप इस बॉक्स को उठा सकते हो? अगर वो हैवी है और आप नहीं उठा सकते हो तो आप बोलोगे आई कांट. ओके, अगर आप उठा सकते हो so your answer should be I can. So it is clear students, जो आप वर्क कर सकते हैं उसके लिए आप आंसर करेंगे I can, और जो आप वर्क नहीं कर सकते हैं उसके लिए आप आंसर करेंगे I can't, कि मैं नहीं कर सकता. ओके, can means होता है you are able to do, and can't means होता है you are not able to do. ओके, can means आप कर सकते हैं, can't means आप नहीं कर सकते. So ask your partner can you questions. Your partner can answer in yes I can or no I can't. Switch roles. इसमें क्या है बच्चों, इस एक्टिविटी में मीन्स आप पार्टनर देख सकते हैं, लाइक आप अपने घर में मम्मा से या पापा से या अपनी एल्डर सिस्टर या एल्डर ब्रदर से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और जो आपके मम्मा या पापा जिसको भी आपने अपना पार्टनर बनाया है तो वो आपको आंसर करेंगे यस आई कैन और नो आई कांट. ओके, आप उनसे कुछ क्वेश्चन करिए कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. आप हिंदी में उनसे पूछे, वो आपको आई कैन और आई कांट इंग्लिश में आंसर देंगे, तो इससे आपको और इजीली अच्छे से समझ में आएगा. ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड. सो स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. ओके, सो लेट्स डू दिस. Let's write. The little caterpillar is having a party. Help her complete the invitation card. So this is the invitation card, okay? And this invitation card a caterpillar wants to give to its friend. So it's a party. My dear B. Okay? So caterpillar's friends is B. So please come to my birthday party. Okay? On Friday at my home at 6 p.m. We shall have fun together. Your friend Caterpillar. Okay students, so this is the invitation card of a caterpillar that it wants to give to a bee. So just like it students, you can make your birthday invitation card. Okay, means when your birthday comes, so you invite your friends. आप अपने friends को बुलाते हो? Yes, very good. So you can give a proper and beautiful invitation card to your friend. So उससे क्या होगा, आपके friends को भी अच्छा लगेगा. Your friend will like it. Okay. So like it, make a invitation card beautifully and properly, then give to your friends. Okay students, very good. Okay students, so in this way we have completed this lesson, lesson 5th. So what is the homework? Your homework is to complete the work properly, okay, and then learn the question answers.
आप बच्चों साथ ही साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न करते जाएंगे, तो देयर वॉन्ट बी अ बर्डन फॉर यू एट द एग्जाम टाइम, कि एग्जाम टाइम पर आपके लिए कोई भी बर्डन नहीं होगा. ओके, डन, वेरी गुड. सो गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.